سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ ہم پچھلی کلاس میں ہم مرکب اضافی شروع کر چکے تھے، لیکن اتفاق کی کل آخری کم کی چکی، تو اس لیے میں صرف ٹچ کروں گا اس کو جو ابتدائی کلاس تھی۔ آج بھی مرکب اضافی ہوگی، لیکن مرکب اضافی ایسی ہوگی کہ جسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں پیچیدہ۔ پیچیدہ نہیں، وہ بھی آسان ہے۔ پیچیدہ مرکب شانی ہے تو وہ بہت بڑی ہو جاتا ہے کہ اصل میں مرکب اضافی پوزیسو کیس ہے۔ پوزیسو کیس کا مطلب یہ کہ یہ میرا قلم ہے، میرا قلم، حامد کی کتاب، اللہ کی کتاب، یہ جو کا کی کے جو ہے یہ پوزیسو شو کرتا ہے، یا میرا، تیرا، یہ سب جو ہے اس کا مطلب یہ کوئی جو ہے کسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ اصل میں اس کے مرکب اضافی کے دو پارٹ ہیں۔ مرکب اضافی کتنے پارٹ ہیں؟ دو پارٹ، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ مضاف کے لیے ایک کنسٹرکشن بنائی جاتی ہے، ایک ساخت بنائی جاتی ہے کہ وہ جب بھی ساخت ہوگی وہ دونوں اسموں کے درمیان وہ کا کی کا مطلب یا داری کا وہ ساؤنڈ یا مطلب پیش کرے گا۔ اس طرح یہاں پر میں نے پچھلے دوسرے انداز میں لکھا تھا، ابھی میں نے دوسرے انداز میں لکھا ہے کہ مضاف جو ہے جب بھی مضاف ہوگا، یعنی کہ جو چیز کسی کی ملکیت میں جاری ہو اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مضاف جی اچھا، تو مضاف جو ہے وہ اسم ہے جو کسی کی ملکیت میں جا رہا ہو۔ مضاف کون سا ہے؟ مضاف وہ جو کسی کی ملکیت میں جا رہا ہو، جس کی ملکیت پہ جس کی طرف ملکیت میں جا رہا ہو اس کو ہم مضاف علیہ کہتے ہیں۔ الی معنی طرف ہوتا ہے، علیہ ہے اس کی طرف، مضاف علیہ ہے جو اس کی طرف جو ہے مراد کی ملکیت جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مضاف کا دو اصول ہے، بلکہ تین اصول ہے جس میں نا اس کو کاربند ہونا پڑتا ہے۔ شرط ہوتی ہے کہ پہلا یہ کہ جو اسم ہوگا نکرہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب کہ دو پیش جو ہے یا دو زبر دو زیر میں ہوتی ہے، یعنی تنوین نہیں ہوگی۔ مضاف کی جو کسی کے ملکیت میں جا رہا ہے اس کی پہلی یہ ہے کہ جیسے کلبن ہے تو ہم کلبن نہیں اس کو دو پیش ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ال جو ہے ہم لگاتے ہیں دی کے لیے، یعنی آرٹیکل اے جو ہے جیسے کلمن ایک قلم، القلم دو قلم، نہیں، القلم دی پین، معرفہ نہیں ہوگا، ہے معرفہ معرفہ ہوگا، وہ معرفہ ال لگائیں گے تو معرفہ ہو جائے گا، نہیں لگائیں گے نا، ال نہیں لگائیں گے تو معرفہ نہیں ہوگا، اس کا معرفہ نہیں ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، لیکن جو مضاف ہے خود معرفہ ہوتا ہے۔ تو ال نہیں لگائیں گے ہم۔ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے قلمون ہے، ہم کہتے تھے اس کا معرفہ نہ ہو تو ہم لگاتے القلم، تنوین اور ال ایک ساتھ نہیں آتا، اس لیے القلم نہیں ہوتا تھا، القلم۔ ٹھیک ہے، تو تنوین بھی نہیں ہوگا،
اور ال بھی نہیں لگے گا. تو ایک اور صورت ہوگی جس کو مضاف کی شکل کہتے ہیں، اس میں نہ تنوین لگی ہوگی نہ ال لگا ہوگا، لیکن اس کو قلمو کہا جائے گا. تو پہلی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ہلکی اعراب ہوگی، یعنی قلمو لکھا ہے پہلے، جو فرض کیا کہ میں کہوں حامد کا قلم، ٹھیک ہے. تو جو ہمیشہ اردو میں جو آخر میں ہے وہ کسی کی ملکیت میں جا رہا ہوتا ہے، عربی میں جو شروع میں ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت میں جا رہا ہے، اس لیے وائس ورثہ چلتا ہے. جو آخر میں ہے اس کو ہم شروع میں پہلے کہیں گے. قلمون حامد. تو قلمو، اس میں کیا کیا ہم نے، قلمن تھا، ٹھیک ہے. اس کو میں لکھ کے تھوڑا سا کر دوں تو شاید آپ کو بھی سمجھ میں جائے. جیسے یہاں پہ دیکھیں حامد کا قلم ہم نے کہا، حامد کا. اب عربی زبان میں کا کی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، کا کی کے لیے کوئی لفظ نہیں. یہ ابھی ساخت ایسی بنے گا کہ جس سے کا کی کا کمانی. تو یہ جو ہے مضاف ہے، یہ اردو زبان میں مضاف بعد میں آتا ہے اور مضاف علیہ جو ہے پہلے آتا ہے. جبکہ اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہے جس کی طرف ہو اسے پہلے لکھا جائے. عربی کا اصول بہتر کیوں ہے کہ پہلے جو ہے مضاف آنا چاہیے، مضاف. پھر یہ مضاف کس کی طرف جا رہا ہے تب مضاف علیہ ہونا چاہیے. تو عربی بہت، عربی زبان میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے. مضاف پہلے آئے گا، مضاف علیہ بعد میں آئے گا. اردو میں مضاف علیہ پہلے آئے گا، مضاف بعد میں. تو اس میں مضاف جو تھا وہ کیا تھا، ابھی لائن کھینچ رہا ہوں لیکن ایسا سمجھا دیں. یہ ہے قلم، حامد کا قلم. تو اس کو پہلے میں لکھ رہا ہوں، اس کی معنی لکھ رہا ہوں. قلب اور اس کا ہاں، یہ دو اسم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. دو اسم کیا ہے، ایک قلم ہے ایک حامد ہے. اب آئیے مضاف کا آپ کو دیکھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے، تنوین نہیں ہوگی تو ال نہیں ہوگا. تو ہم پھر یہ کہ اعراب ہلکی ہوگی. اعراب ہلکی کی مطلب یہ کہ اگر یہ تنوین دو ہے، اگر ہم اسے ایک کر دیں تو یہ ہلکا ہو جائے گا. دو پیش بھاری ہوتا ہے یا ایک پیش؟ ایک پیش، دو پیش ہلکا ہوتا ہے، دو پیش بھاری ہوتا ہے. تو ہمیں ہلکا اعراب کرنا ہوگا تو ہم ایک پیش لگائیں گے. تو ہم نے یہاں پر پہلا کام جو کیا ہے وہ اس کا قلم کیا. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اس کو معرفہ بناتے تھے تو ال لگانے کے بعد ایک پیش لگاتے تھے. تو یہاں ال بھی نہیں لگایا ہے، تو ہماری تمام شرائط پوری ہو گئی ہے کہ ہم نے لکھا ہے قلم. اب یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم نے کہا کہ اعراب ہلکی ہوگی تو دو پیش سے ہم نے ایک پیش کر دیا قلم. پھر یہاں حامدن تھا، حامدن، اس کی شرط یہ ہے مضاف علیہ کہ ہمیشہ حرف جر میں ہوگا. حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کے آخری حرف پر دو زیر یا زیر ہوگا. حرف جر، حرف جر جو ہے حالت جر میں جب بھی ہوگا تو یہ دو زیر ہوگا یا ہوگا. تو اس میں دیکھیں ہمیشہ حالت جر میں ایک ہی شرط ہے. ایک ہی شرط کا مطلب کیا ہے، اس میں ال لگے گا، ال لگائیں گے آپ، سوائے ال وہاں نہیں لگائیں گے جہاں اس میں علم ہوگا. جیسے حامد، محمد، اس میں ال نہیں لگے گا، اس میں ال نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. باقی آپ ال لگائیں گے، ٹھیک ہے. تو حامد نہیں لگے گا. تو حامد بھی جب ہم لکھیں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جر ہوگا تو اس کو ہم حامد. اب جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں کسی چیز کا
तो देखेंगे कि ये इसमें तो अल भी नहीं है, पेश एक लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये मुदाफ है। जो तनवीन नहीं है, अल नहीं है, लेकिन एक पेश लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मुदाफ है। अच्छा, नकरा में हम क्या करते हैं, दो पेश लगाते हैं, तनवीन लगाते हैं, और जब हमें मारफा बनाना होता है उसका, तो उसमें अल लगाते हैं, तो उसके बाद हम उसकी तनवीन ख़त्म कर देते हैं, तो अल कल्बू होता है। लेकिन मुज़ाफ में ये होता है कि ना अल लगा होता है ना तनवीन होती है, उसमें एक पेश लगा होता है। तो ये एक पहली पहचान ये होती है कि ये इसका मतलब इसका ताल्लुक किसी से होने जा रहा है, और वो कन्फर्म उस वक्त होगा जब अगले हरफ जो है आपका मजरूर होगा या हालत जर में होगा। हालत जर का मतलब ये होता है कि उस इसम के आखिरी हरफ पर ज़ेर या दो ज़ेर। अच्छा, इसमें अगर दो जेर के बजाय एक जेर लगाएंगे तब भी सही है? इसको जो है इसमें शर्त नहीं है बताने की, इसमें शर्त नहीं है ना, शर्त तो मुज़ाफ में है, ये मुज़ाफ अलह है, इसलिए इसमें दो शर्त जो है आमिद तो आमिद। मोहम्मदुन जो है हम मोहम्मदू नहीं कहते जब तक हमें कोई आगे लफ्ज़ मिला के बोलना हो, ठीक है ना। हामिदुन लिखा हुआ तो हामिदिन होगा। हामिदुन लिखा है तो हामिदीन करेंगे। सही। रफ़ा में है, ये हामिदुन जो लिखा है ये रफ़ा में है, रफ़ा में। इसको नज़र में करेंगे। अगर हामिदन होता तो वो नसब में होता, तो हामिदिन होगा। और हामिदन लगता है नसब में जब दो ज़बर हो तो एक अलिफ रखते हैं, लेकिन एक ज़बर हो तो हम अलिफ नहीं रखते। ये कायदा है, ये कायदा है, ये ग्रामर का कायदा है कि जब दो ज़बर नसब में होगी तो अलिफ लगेगा, जब दो ज़बर नहीं होगी नसब का, एक ज़बर लगा होगा तो एक अलिफ की शर्त ये है कि दो ज़बर के साथ। क्लियर? अच्छा, ये बताने तो ये आपने पहला देखा कलमू आमिद, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साफ जो है इसको आपने कंफर्म किया कि इसके दरमियान में कोई भी जो भी आपके ज़बान में होता है का ये लगाएंगे, ठीक है। ये सब जब भी होगा तो दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए हमारी ज़बान में का की के होता है या रा री रे होता है, ये पहचान है। जैसे मेरी, तुम्हारा, ये सब जो है पॉसेसिव केस है, इसमें आखिर में रा री रे लगता है या का की के लगता है। इससे मतलब पता चलता है कि एक का ताल्लुक दूसरे से है। लेकिन अरबी में हमें पता इस तरह चलता है कि उसके मुदाफ में ना अल होता है ना तनवीन होती है और एक पेश लिखा होता है। इसका मतलब कि ये इसका ताल्लुक मुदाफ का किसी और से होने वाला है। कन्फर्म उस वक्त होगा कि जब आपका मुदाफ अलैह के नीचे मजरूर होगा, जर वाला होगा, यानी उसके आखिरी हरफ को ज़ेर होगा, ठीक है। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि है कि कल उसी थोड़ा आगे करके वो जो नहीं आए थे वो उनका काम करें। अच्छा, कल वो हामिद हो गया। एक मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको इसका तर्जुमा याद कीजिएगा। राशियों का और राशियों का अच्छा, इसमें अच्छा
یہ آپ کو اس میں ایک چیز دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ ال ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ تنوین ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔ اب اس کا مطلب کہ اس کا تعلق کسی چیز سے ہے، تو الحدیث غاشیہ، حدیث الغاشیہ ہے حدیث الغاشیہ غاشیاتی۔ غاشیہ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اس میں تاکید کے حساب سے لگے گا، ٹھیک ہے۔ سامنے بھی تیار جی کلاس اچھا اچھا یہ ورڈ آیا۔ اس میں ہم نے مدرسے کیس کو دوسری طرف سے کیا ہے، والی کر کے یہ کم ہوتا ہے شدت والی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس میں مدرسے اس کے لیے بات کا تعلق ہے اس سے ہو رہا ہے، والی کہتے ہیں شدت والی بات۔ اللہ کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس پہنچی کوئی شدت والی بات یا ایک شدت والی بات پہنچی؟ یہ شروع میں ٹھیک ہے۔ حل مانے ہوتا ہے کیا؟ عطا کا تیرے پاس آئی، عطا مانے آئی، کا مانے تیرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا لکھ دیا تاکہ یہ تھوڑا سا آپ کو پتا چلے کہ قرآن سے۔ ایک اور چیز دیکھیے، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں ترجمہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا کبھی آپ عربی سے اردو، اردو سے عربی، تو اس کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ کس طرح لکھا ہوا ہے، اردو میں کس طرح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی کتاب، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی اردو زبان میں ہے آخری والے لفظ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، اس کا تعلق اس سے اللہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عربی زبان میں کتاب پہلے آتی ہے، تو ہمیں جو ہم نے اس کا پہلے نکالا تو یہ کہ یہ جو ہے کتابن ہو گیا، کتاب اس کا ترجمہ جب کیا، جس نے بھی دیکھا کتاب کو کیا کہتے ہیں، تو کتاب کو کتابن کہتے ہیں، جس نے دیکھا اللہ کا وہ دیکھا تو اس میں لکھا اللہ، تو دو لفظ ہمیں مل گیا، کتاب جو مضاف تھا اور اللہ جو مضاف بنے گا، اور اللہ جو مضاف علیہ بنے گا۔ تو جب مضاف بنے گا تو اس کی شرط پوری کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہلکی اعراب دینا پڑے گا، تنوین نہیں دیں گے، الدی لگائیں گے، اعراب ہلکا ہوگا، تو اس کا اعراب کتنا ہے؟ دو پیش ہے، دو پیش کا کیا کریں گے؟ ایک پیش لگا دیں گے، ہلکا ہوگا، دو پیش سے ایک پیش لگ گیا۔ تو کتاب اللہ، یہاں کتابوں سے پتہ چل گیا مضاف ہے یہ۔ اب اس کے بعد اگلا حرف جو ہے زیر والا جو ہے اس کی لازمی طور پر ہمیشہ یہ جر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ، اللہ، اب اس میں دونوں اس میں کا کے یا را ری رے وغیرہ جو ہے وہ اس میں لگایا جائے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی کتاب۔ ہم چونکہ عربی میں چونکہ ویسا لکھا جاتا ہے، اس لیے جب ہم ترجمہ کریں گے خاص طور پہ مضاف کا جب ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ابھی کوششیں کرنی ہے کہ ہم جیسے کتاب اللہ ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی اللہ کی کتاب، آج کے سمجھ میں آتا ہے نا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ لیکن آپ کو ترجمہ جب کرنا ہوگا تو آپ الٹا کریں گے، یہاں سے اللہ کی کتاب، کیونکہ ہم ریورس، دونوں چیز ریورس ہے، عربی کی الگ ہے اور اس کی الگ ہے۔ تو جب آپ ترجمہ کریں، ویسے تو جب کتاب اللہ ہے آپ سمجھیں، اب میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی مسجد، مسجد اللہ، مسجد اللہ، تو آپ نے دیکھے مسجد پہ نہ ال لگایا نہ تنوین تھی، ایک پیش تھا، اس کا مطلب کہ مضاف بن گیا، مسجد و مضاف بن گیا۔ آپ کس طرف جا رہا ہے، اس کی نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کے اسم جو ہے اس کے آخری حرف پہ زیر لگے کہ مسجد اللہ، تو مساجد للہ ہی آیا نا قرآن میں، مساجد للہ ہی آیا نا قرآن میں، مساجد اللہ ہے، اللہ کی مسجدیں جمع ہے، مساجد للہ، ہیں؟ مساجد کسی للہ، وجہ لکھا ہوگا کہ وہ
अल्लाह ही के लिए तमाम मस्जिदें मसाजिद हैं, तबलीग करते हैं, ठीक है। तो अब ये करना ही है अच्छा, अल्लाह का घर को क्या कहते हैं अरबी में? बैत बैत, बैतुल्लाही, बैतुल्लाही। देखिए अभी सब बनना शुरू हो गया, बैतुल्लाही। अल्लाह की ऊँटनी को कहते हैं नाक़तुन, नाक़तुन कहते हैं। तो नाक़तुल्लाही, ना अल्लाह का ना तन्वीन हुई, नाक़तुल्लाही, आखिर में ज़ेर है, नाक़तुल्लाही अल्लाह की। अच्छा, अल्लाह की ज़मीन अल को लगेगा अर्दुल्लाही अर्जुल्लाही, अर्जु इसका तो मुज़ाफ़ बन रहा, ठीक है। इधर हुआ भी थोड़ा सा, या एक और दो मिसाल भी आगे बढ़ूँ। अब ये है कि ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने मज़ीद कर दिया, और भी अगर चाहे तो आप एक दो और कर सकते हैं। अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, नबी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। ये जरूर लगाइए, ये बोलिएगा नहीं, अरे हाँ बोलेंगे तो अब्दुल्ला है बोलेंगे, लेकिन क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए अरब में क्या लगाया है, इसलिए हम करते हैं। और आप लाजमत है, आपकी आदत है कुरान पढ़ने की, तो आप जो असूल है उसको आप अपनाएंगे उस वक्त, लेकिन ये देखेंगे कि यहाँ देर लगाए, ये जो है इसमें पॉजिटिव केस है, ठीक है। अब ये कि मैं पहले कर देता हूँ, अल्लाह का घर क्या था, क्या हमने क्या था? बैतुल्लाही बैतुल्लाही। अच्छा, घर का दरवाज़ा, अल्लाह के घर का घर का दरवाज़ा, नहीं घर का दरवाजा, घर का दरवाज़ा, बाबू बैतुल बैतुल बाबी, बैतुल बाबी, बैतुल बाबी, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के घर का दरवाज़ा, बड़ा हो गया ना चीज़, आगे बढ़ गया। अल्लाह के घर का दरवाज़ा, इधर आइए सब चीज़, इसमें हम देखेंगे मुज़ाफ क्या है, दरवाज़ा। दरवाज़ा हमारे यहाँ आ जाएगा, जिसको दरवाजे को अरबी में देखा है बाबुन कहते हैं। दरवाजे को क्या कहते हैं? बाबुन। बाबुन माने दरवाज़ा, बाप ऐसे भी कहते हैं दरवाज़ा। अब ये जो घर को कहते हैं बैतुन, तो बैतुन ये हो गया, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ जो है ये क्या है, मुज़ाफ, और ये क्या है, मुज़ाफ अलैह। अच्छा, लेकिन जो है घर का दरवाज़ा जो है, इसके लिए फिर ये मुज़ाफ हो गया और ये जरूर मुज़ाफ अलैह। अच्छा, दो तो इसका असूल जो है, घर को हम दो असूल यानी दो शर्त, दोनों शर्त पूरी करेंगे, ठीक है। अल्लाह यानी बाप का तो बाबू कर दिया हमने, ठीक है, तवज्जो दीजिएगा सर। बाप का हमने क्या कहते हैं, बाबू, ठीक है। इस पर आल नहीं लगा, तकमील नहीं लगा, आराम। पहले ये एक मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनेगा, फिर दोबारा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। हाँ नहीं, उसी के दोनों दोनों। अब ये बैती था, बैतुन था, तो हमने क्या कर दिया इसका, बैती, और ये किया था हमने अल बैती, बाबुल बैती, ये किया था। लेकिन हमें इसको मुज़ाफ करना अगले लफ्ज़ का, तो उसकी शर्त यह है कि अल नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब ये बाबुल बैती दोनों असूल ये हो गया, तनवीन नहीं है, ठीक है। ये बैतुल्लाही नहीं होगा, बैतुल्लाही बैतू था ना पहले, अल बैतू था। नहीं, बाबू को जैसे हमने बाबुन को बाबू कर दिया, अंकी आ रहा अब आपके सामने लिखूँ ताकि आपको ये था बाबुल बैतू, ये ठीक है।
था बाबुल बैती घर का यानी घर का दरवाजा घर का दरवाजा तो क्या हुआ बाबुल बैती। लेकिन ये अल्लाह के घर का दरवाजा। अब अल्लाह का घर जो है ये हमारे दूसरी जो कंस्ट्रक्शन की क्या था बैतुल्लाह है, ठीक है। तो एक असूल तो ये था कि ये बैतुल्लाह निज़ाम है, निज़ाम में अल नहीं लगता तन नहीं लगता, हम इसको बता दें, ठीक है। आ रहा समझ में सब समझा दीजिएगा। हमने क्योंकि इसके ये मुज़ाफ़ नहीं तो है लेकिन मुज़ाफ़ भी बनेगा। मुज़ाफ़ का ये है तो अगर मुज़ाफ़ बनाएंगे तो ये जो मजरूर किया हुआ है, ये जो ज़ेर लगी वो हुई ज़ेर लगा रहेगा, ये क्योंकि लगी। मुज़ाफ़ अलैह की भी बात रखती है ना। अच्छा, हाँ, मतलब मुज़ाफ़ भी बनेगा, मुज़ाफ़ अलैह भी मुज़ाफ़ अलैह भी बनेगा। तो मुज़ाफ़ का अलैह का तो शर्त ये है कि ज़ेर होना चाहिए, तो हम ज़ेर ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ वो उसकी शर्त पूरी कर दी, तनवीन नहीं लगाई और अल नहीं लगाया और हमने गए टी कराया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्या इसको किया हुआ बाबू बैतुल्लाही, बाबू बैतुल्लाही। बैती क्यों है कि ये मुज़ाफ़ अलैह भी है और मुज़ाफ़ है इसलिए अल नहीं लगा, ठीक है ना। तो बाबुल बैतुल्लाही। अब आपने सही किया, तर्जुमा नहीं किया है, उल्टा चलेगा। अल्लाह का क्या आएगा यहाँ पे, अल्लाह के घर का। क्लियर हुआ, समझ में आया करके। ये जो है बहुत अहम है और कुरान में बेशुमार जगह आया है, बेशुमार जगह आया है। इसलिए आप जब भी ये करेंगे तो इसको पहले पहचानेंगे, देखेंगे इसमें अल तो लगा ही नहीं है और एक पेश लिखा हुआ है और तनवीन भी नहीं है, इसका मतलब ये मुज़ाफ़ है, उसको पहचानेंगे। मुज़ाफ़ के माने इसका ताल्लुक़ किसी से होने वाला है। अब उसको कंफर्म किस तरह का, जिससे ताल्लुक़ होने वाला है उसके आखिरी हरफ पे ज़ेर हो तो हम उसको काकी के या रारी रे जो भी हमारी उर्दू के हिसाब से जो होगा वो काटेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। और आइए, आदम के बेटे के दोनों कौन, आदम के बेटे के दोनों कौन, बेटे है आदम बेटे दोनों पाँव, आदम के बेटे के दोनों, मतलब ये ये तीन एक वो चीज़ें हदीस आती है। हैं, आदम बेटे और दोनों पाँव, अब उसके हिसाब से बनाना है। आदम के बेटे के दोनों पाँव, पहले हम आदम के बेटे आदम बेटे और फिर बेटे के दोनों पाँव, ये है। तो ये जो है बेटे जो है ये मुज़ाफ़ भी है, मुज़ाफ़ अलैह भी है, ठीक है ना। तो ये एक हदीस उस हदीस से लिया गया था थोड़ा सा। तो आदम क्या है, मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है? आदम जो है मैं इब्राहिमो नसब इब्राहिमा और जरबी इब्राहिम, आदमो आदमा आदमा, इस्माइलू इस्माइला इस्माइला। हमने कहा था गैर मुनसरिफ जो है 5-6 मुनसरिफ नामों के अलावा, यानी मोहम्मदन और नूहून हूदन, ये सब को छोड़कर जो है 5-6 बनते हैं। उनके अलावा जितने भी पैगंबर हैं वो उनके नाम गैर मुनसरिफ हैं। गैर मुनसरिफ का मतलब ये है कि उनका नसब और जर जो है ज़बर से शुरू है। यूसुफू यूसुफ़ा यूसुफ़ा, इस्माइलू इस्माइला इस्माइला, आदमू आदमा आदम, ठीक है ना। इसाकू इसाका इसाका, ठीक है। तो थोड़े से नाम है जो मुनसरिफ है, यानी 2 पेश के साथ आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये कि नूह, और
3 और देखेंगे, याद करेंगे तो लूत। अच्छा, तो अब ये कि इसमें ये बताइए मुझे कि इसमें मुज़ाफ कौन है और मुज़ाफ अलैह कौन है? मुज़ाफ आदम है, मुज़ाफ अलैह नहीं, अच्छा हाँ उल्टा है ये। दोनों उल्टा पाँव है इंतजार क्या लिखा है? दोनों पाँव। दोनों पाँव दोनों पाँव का ताल्लुक किससे हो रहा है? मुज़ाफ दोनों पाँव मुज़ाफ है, ताल्लुक मुज़ाफ अलैह, यानी कि मुज़ाफ का ताल्लुक यहाँ आदम से होता है, ठीक है ना। अब ये कि आदम के बेटे का यहाँ पर ये है, और ये इब्दु जो है ये मतलब कि ये मुज़ाफ भी होगा और मुज़ाफ अलैह भी होगा। तो हम जो लिखेंगे इसमें पहले एक हल्की यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मुस्ना और जमा की हल्के अराब में नून गिर जाता है तो हल्के अराब का। ये चूँकि मैंने कल क्लास के लिए बताया मैं, इसलिए मुझे लगता बता चुका हूँ, मैंने कभी बताया नहीं, पहले बता आप लोग को लगा हुआ नहीं हमने। तो मुस्ना जमा की हल्के अराब कैसे करते हैं? नून गिर जाता है, जैसे कदमानी, 2 पाँव, नून गिर गया, कदमा। अच्छा, किताबानी क्या है? किताबा, नून गिर गया, हल्का हो गया। सालिहून, तो नून गिर गया, सालिहा, जमा का, ठीक है। इसी तरह जितने भी है ना, तस्निया में आने की साउंड आती है या नसब में ईना की साउंड आती है, ऐनी की साउंड आती है। किसकी आती है? ऐनी की। किताबैनी, 2 किताब नसब में, और जमा में किताबीना, यानी कि नसब जो है किताबीना बनेगा। ये आपको पिछली क्लास याद करेंगे जब अराब का पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी एक बार देख लीजिएगा अगर भूल जाए। दोनों पाँव जो है ये जमा तो नहीं है ना? है जमा तो नहीं है दोनों कौन सी? पाँव। ये आदम के बेटे के दोनों पाँव, के तस्निया है, तस्निया। मुस्ना सुने तस्निया 2 पाँव है ना, 2 है तो 2 से ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, तो इसका नून निकाल दिया, कदमाने था, तो नून गिरा दिया, तो इसका क्या हुआ? कदमा। इसका मतलब ये कि इसकी हल्के राब, इसमें अल नहीं लगा हुआ, और इसकी जो अराब हल्की हुई है कदमा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ये इसका ताल्लुक किसी से होने वाला है? बेटे से होने वाला है। तो कदमो, इसको पहले पूरा लिखूँ, इसके शायद आप लोगों को किताबुन, किताबुन लिखूँ, यानी इसकी बेटे की किताब। बेटी की किताब, ठीक है। अब ये चूँकि ये अब हमें आगे क्या करना है? मुज़ाफ कि, अभी तो मुज़ाफ अलैह है, अब मुज़ाफ बना। मुज़ाफ किया ना, अब मुज़ाफ अलैह बनेगा। बेटे के कदम, अलिफ लाम मुज़ाफ। नहीं, आदम की बेटी, अब होगा आदम की बेटी, तो फिर ये आदम मुज़ाफ हो की जाएगा। हाँ, बेटी मुज़ाफ है, तो अल निकल जाएगा, और ठंडी नहीं लगेगी, और ये मुज़ाफ अलैह की वजह से देर भी चला गया। पहले मुज़ाफ अलैह था, तन्वीन तो आएगी, तन्वीन नहीं आएगी, हल नहीं आएगा, लेकिन ये इब्दू था, इब्दू को हमने ये लगा दिया क्योंकि वो मुज़ाफ अलैह की, तो किताबुल इब्दू, जब बनाएंगे उसका मजरूर तो क्या होगा? ये आग खींचेंगे, क्योंकि ये क्या है? नसब भी है
ठीक है, कुछ नहीं आए तो बोलिएगा, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, उधर नहीं आता। हाँ, ये क्लियर हुआ? किताबु इब्न आदम, आदम के बेटे की किताब, उनका चले हमारे इसमें जो है ना, तो आदम के बेटे, कदम पे हम थे ना, किताबों आदम के बेटे की किताब क्या था? कदम। है यार, ये क्या था? कदम 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 आदम, sorry यार। दो जुमले अलग बेटे की किताब के भी होगा, कदम में भी होगा। मैं वही सोचा कि क्या लिख दिया। मैंने कहा शायद किताब जो है वो आसानी करने के लिए बता रहे हैं। नहीं, आदम के बेटे के दो कदम, दो पैर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दो पाँव, ठीक है। आदम ऐसा के लेकिन- बेटे के पाँव बोलेंगे तो दो ही हो गए ना, हाँ, हमारी दो। ज़बान में भी दो अगर नहीं भी लगाएं तब भी नहीं, पाँव अरे होगा। भाई अगर एक पाँव का आदमी होगा हाँ। तो हम क्या करेंगे? एक पाँव किसी का ज़ाया हो गया, एक पाँव पे है तो एक पाँव तो कहेंगे ना, ठीक है। लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल सही करें, जैसे यदा, यदाने माने दो हाथ, हाथ यदाने माने दो हाथ, लेकिन तब्बत यदा अबीला, हाथ टूट जाए दोनों, एक नहीं दिखता यदा, क्योंकि वो उस मुजाफ में गया तो इसकी दोनों हाथ पे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, पहले आपने याद रख ली थी कि जब अराब बिल हरकत होगी, अराब बिल हरकत होगी तो हमारा जो तनवीन है, दो पेश, दो जेर, दो ज़बर, ये एक में तब्दील हो जाएगा, मुज़ाफ जो बनेगा, ठीक है, हल्की अराब होगा। लेकिन जब अराब बिल हरका, जहाँ तस्निया और जमा में हरफ से इजाफा करते हैं, आनी ऊना, ईना ऐनी, ऐनी ईना, ठीक है, इसका हमने किससे किया? हरफ से किया। तो उसमें मुस्ना और जमा में उसके इराब से नून गिर जाएगा तो वो हल्की इराब हो जाएगा। इसका मतलब जैसे यहाँ कदमाने था, कदमा कर देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं और करूँगा ताकि आपको और मिले। एक चीज़ और याद रखिए कि मजरूर होने की वजह, जर हालत जर में जाने की दो वजह, हालत जर में जाने की सिर्फ दो वजह, एक ये वजह कि जितने भी प्रीपोजिशन यानी हर पे जर आएंगे उसका जो इस्म है वो मजरूर होगा या हालत जर में होगा, और दूसरा यानी मुज़ाफ़ ज़हन में मुज़ाफ़ होगा। अलैह। फिर फोन आ रहा था। अच्छा, तो मुरक्कब होगा। ठीक है, दूसरा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह में होगा। दूसरी जो शर्त है वो मुज़ाफ़ अलैह की है। दूसरी शर्त मुज़ाफ़ अलैह की है ना, दूसरी शर्त ये कि हमेशा मुज़ाफ़ अलैह जो है मजरूर। तो दो ही वजह है, किसी की कोई वजह होगी जो आपका मुज़ाफ़ या यानी कि मजरूर होगा। उसकी पहली वजह ये है कि एक तो प्रीपोजिशन है, दूसरी ये कि हमेशा मुज़ाफ़ अलैह हालत है। दो वजह, क्लियर है ये बात? हालत जब जाने की फोन आ रहा है शायद आपको। यहाँ तक आवाज़ आ रही है। इसके आगे तो ये क्लियर होगी बात। इसी तरह हम बताएंगे कि नसब की कितनी वजूहात है जो नसब में जाएगा। नसब में जाने की वजह नहीं है कि पता चला जब हम फेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मफूल बनता है तो तब वो नसब में जाता है। और इस्म जो है, जो हमारा जो बेसिक इस्म है वो तनवीन से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन रफ़ा जो है जब फ़ाइल होगा काम करने वाला तो तनवीन यानी कि रफ़ा होगा, जो पेश रखा होगा, जब पेश रखा होगा, ठीक है।
इसी तरह सबको बताएंगे कैसे होता है, लेकिन आज ये आपके ज़हन नहीं होना। इसके बाद ये कि एक और मैं आसानी से बता दूँ, उसके बाद आपको एक और बता के खत्म करता हूँ। पहली बात ये कि आपका जो ये है नसब और जर, नसब और जर की ज़मीन जो है इसको मुत्तसिला कहते हैं, अटैच कहते हैं। मुत्तसिला माने जुड़ी हुई, ठीक है, अटैच। तो अटैच जो है वो आपको मैं अगर मैं कहूँ ज़ैद की किताब करीब है, ज़ैद की किताब किताबों ज़ैद उसकी किताब, अब इसका ही आएगा किताबू तन्वीन नहीं डली हुई है, ठीक है, अलवी नहीं लगा हुआ, किताबू इसके बाद क्या हुआ, उसकी किताब। आगे आइए, किताबू हुमा, उन दोनों की किताब, किताबू हुम, उन सब की ये सब मुरक्कब इज़ाफ़ी चल रहा है। किताबू हा, उस मुअन्नस की किताब, किताबू हुमा, दोनों की किताबू हुन्ना, किताबू का तेरी किताब, री आए ना, किताबू का किताबू कुमा, किताबू कुम, किताबू की किताबू कुमा, किताबू कुन्ना, किताबी मेरी किताब किताबुना, हम दोनों किताब, और किताब हम सब की। तो ये मैं ज़्यादा नहीं आपको कर दिया, लेकिन ये आपको बताने के लिए था कि इसमें सिर्फ ये जो होगा, आप मुज़ाफ जो है उसके आगे जो है ये वाली जर वाली जो है इसमें ज़रूर लगाएंगे, जो हमेशा जुड़ी हुई आएगी। ये अलग नहीं होगी, ये क्या होगा, जुड़ी हुई होगी। अब एक आप खुद कर लें कलम का, जल्दी जल्दी बोलें। रब का कर ले जल्दी से, क्या है, ज़हन में माने रखिएगा। रब्बी का क्या मतलब है, मेरा रब, रब्बुना हमारा, ये आपने होगी। अब ये कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के साथ एक चीज़ याद रखिए कि सिर्फ भी आ जाती है, सिर्फ भी आ जाती है। बहुत आसान है, लेकिन मैं इसलिए कि इसको ताकि बहुत लंबा ना हो जाए, अगली क्लास भी पता चला कि मैं कोई इज़ाफ़ी पढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। आसानी के लिए बता रहा हूँ कि जब भी ये बनाएंगे सिर्फ जो है वो आखिर में रखेंगे, पहले आप मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे। जब भी जो भी सिफ्त होगी, पता चला कि दो आदमी है तो दो सिफ्त हुई, तो दोनों सिफ्त को आखिर में रखेंगे और सिफ्त को इस तरह पहचानेंगे। आपने जब मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अगर तो क्या कहते हैं, मौसूफ जो है पेश वाला है तो सिर्फ भी पेश वाली होगी। मौसूफ जैसा मौसूफ वाला है, वैसा ही अगर वो मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस है तो ये मुअन्नस। पहचान ये है, तो हम वहाँ पहचानेंगे कि अगर यहाँ मुज़क्कर है तो उधर तारीफ मुज़क्कर की होगी, और मुअन्नस है तो मुअन्नस होगी। अगर ज़बर से लिखा गया है तो वो ज़बर से लिखा गया, अब ये ज़ेर से लिखा गया तो उसमें, ठीक है। ये पहले इसलिए बता दिया ताकि शॉर्ट। अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल, तो आपको क्या करना है, अल्लाह का रसूल पहले बनाना है। क्या बनाएंगे, रसूलुल्लाह आपने बना दिया। अब हमने कहा था क्या कि कौन बाइज़्ज़त, रसूल, तो रसूल को हमने आखिर में लिखा, करीम ठीक है, इज्जत है करीम लिखा, बाइज़्ज़त करीम। तो रसूलुल्लाह करीम। अब ये बताएं इसका अल करीम में लिखा हुआ है, अल करीम पेश से है या देर से, क्या बता रहा है ये,
पेश से पेश से पेश है, इसमें भी पेश है, इसमें भी पेश है, तो इसका मतलब बाइज्जत रसूल ये हुआ, ठीक है ना। तो अल्लाह का बाइज्जत, क्योंकि तारीफ हमारी उर्दू में पहना, तो काला लड़का गोरा आदमी, तो इसीलिए हम कहेंगे अल्लाह का करीम। बाइज्जत रसूल, ठीक है। ये आप समझ गए थोड़ा सा मेरे ख्याल में। अब देखिए बाइज्जत अल्लाह का बाइज्जत रसूल, ये इसलिए कि बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे आता है, तो आपको अभी आगे एक बार बताऊँगा तो आपको होगा। तो रसूलुल्लाह हो गया, पहले हम बनाएंगे मुजाफ यानी कि रकम शानी, तो अल्लाह का रसूल क्या होगा, रसूलुल्लाह। अब रसूल भी बाइज्जत है और अल्लाह भी बाइज्जत है, तो जो करीमी लिखेंगे इसमें जेर है, तो ये इसका है, अल्लाह की बाइज्जत, पहले उसका और ये पेश है, यहाँ पेश है, तो दोनों बाइज्जत है, इसलिए कि दोनों को करें कौन सा इसका है और कौन सा इसका है। क्लियर वही बात कि जब रसूल करीम, तो बाइज्जत रसूल का बाइज्जत, नहीं करीमू पहले लिख सकते थे, करीमू और फिर करीमी। करीम। आप असल में अरबी ज़बान ऐसी है कि अगर आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मुआवजा करेगा किस पे पेश है, पेश यहाँ लिख दिया है तो इसका अच्छा जो मतलब जिसका आप लिख सकते हैं, इसमें मना नहीं है, जायज़ है, आप लिखेंगे लेकिन पहचान जाएंगे कि ये इसका ताल्लुक इससे है, यहाँ पेश लिखा है और इसका ताल्लुक इससे है, अगर बात में, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एक चीज़ और याद रखें, तलबु इल्मी, इसके माने बता, तलबु इल्म की तलब, इल्म की तरफ, फरीज़तन फर्ज है इल्म की किस तलब। पर, अला कुल्ली मुस्लिम मुसलमानों पर। क्लास हम खत्म करते हैं मेरे ख्याल में।